Hello students, good morning to all. In this lecture, I will explain sexual reproduction in angiosperms and life cycle of angiosperms. So please watch this lecture very attentively. Now student, let's start this topic, reproduction in angiosperms. Angiosperm, a flowering plant, reproduce sexually. They bear flowers. स्टूडेंट एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनमें फ्लावर्स ये फ्लावर को कंसिस्ट करते हैं। फ्लावर जो होता है एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है। नाउ स्टूडेंट, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट: sepals, petals, stamen and carpel. Student, you can say that sepals green leafy structure होते हैं, petals colored full leafy structure होते हैं और stamen मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, carpel फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। Hello student, today I will discuss about the flower and its structure. Question is that what is flower? Student, flower is a modified shoot. It is a main reproductive part of the flower. So we can say that a flower is a special structure produced by the plant for reproduction. Flower may be differ in color, size and arrangement. The basic pattern of all flowers remains same. Flowers has aesthetic, ornamental, social, cultural and religious value. Now we discuss about the structure of the flower. Flower has four main structures. Sepals, petals, androecium and gynoecium. In another word, we can say that calyx, corolla, androecium and gynoecium. Firstly, we discuss about the sepals. Sepals, it is a leaf-like structure found at the base of flower. Student, it is the lowermost hole. It is a collection of sepals. Means calyx is the collection of sepals. If anybody asks to you what is calyx, so you can say that a collection of sepals is called the calyx. Most sepals are green in color due to presence of chlorophyll pigment. However, some flowers such as gulmohar show colored sepal due to presence of chromoplast. The sepals may remain free from one another or in mustard and reddish. They may be united together as in brinjal and China rose. Sepals protect the flower in young stage. It also prepares the food for the flower by photosynthesis process. So we can say that student, sepals are green leaf-like structure. Okay, student, and anybody asks to you what is calyx, so it is the first hole, lowermost hole, and it is a collection of sepal. Now we discuss about the petals. Petals, these are the colorful part of the flower. Means flower का जो colorful part होता है, that is called the petals. Petals are colorful due to presence of the chromoplast. Now petals together are called the corolla. It means that collection of petals are known as corolla. So this is the second hole of the flower. It is located just above the calyx. We often remember the flower by the color of petals. The petals are sometimes scented. Petals जो होते हैं scented होते हैं. Like sepals, petals may remain free or fused. Petals of datura are fused, whereas petals of gulmohar, silk, cotton are free.
The main function of the petals to attract insect or bird for the pollination. So student, now we discuss about the stamen. It is the male part of the flower. All stamens of flower form the androecium. We can say that the collection of stamens of flower is called the androecium. Each stamen consists of stalk or filament and knob-like structure called anther which contain pollens. Pollens are the small spores-like structure that are required for reproduction. So student, in this topic, 3-4 things you have to remember always. Male part of flower is called stamen and group of stamen is called androecium, and each stamen consists two main part, filament and stalk, and filament and anther. Anther produce the pollen grains. Pollen grains are the small spore-like structure. So, student, in this way we can understand stamen. If anybody asks to you, name the male part of flower, then you tell me stamen. Now we discuss about the pistil. Pistil is the female reproductive part of the flower. Are all the pistils of flower together make up the gynoecium. It means that the group of pistils is known as the gynoecium. A pistil show three parts: stigma, style, and ovary. Strand ovary contain ovule that grow into seed on maturity, and ovary get transferred into brood. Strand, in this way we can understand all the holes of the flower. First calyx, second corolla, third androecium, and fourth gynoecium. In another word, we can say that sepal, petal, androecium, gynoecium. Okay, student. Now, uh, student, next is male reproductive part of flower. Stamen is the male reproductive part of flower. Stamen consists two parts, filament and anther. इस स्ट्रक्चर में जो लॉन्ग सिलेंडर स्टाल्क दिख रहा होगा स्टूडेंट, यही फिलामेंट होता है, और जो टॉप पे एक फर्टाइल पार्ट जो पॉलेंस प्रोड्यूस करता है वो एंथर कहलाता है. स्टूडेंट, you have to draw this diagram also in your copy and write about the stamen. Now student, this is the structure of the anther. Anther is a bilobed structure. It consists two theca, and each theca consists sporangium, and sporangium produce the pollen grains. स्टूडेंट, जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि एक एंथर को जब ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कट किया जाता है तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इस एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक्स आपको दिखेंगे, और इस 4 पॉलन सैक्स में आपने देखा कि एक एपिडर्मिस होती है, फिर फाइब्रस लेयर होती है, टैप्टम होता है, पॉलन ग्रेन इसके अंदर होते हैं, और पॉलन मदर सेल होती है. स्टूडेंट, पॉलन मदर सेल एक डिप्लॉयड सेल होती है. ये इसका जब मियोसिस सेल डिवीज़न होता है तभी एक टेट्राड ऑफ पॉलन बनता है. मतलब एक जब पॉलन मदर सेल का मियोसिस होगा 4 डॉटर सेल बनेंगी, और चारों सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वही टेट्राड ऑफ पॉलन कहलाता है. और सेपरेट होके चारों जो है सेल्स ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. स्टूडेंट,
तो कह सकते हैं कि एक जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 थीका होते हैं और 4 पोलन सैक होते हैं और इन्हीं पोलन सैक को स्पोरेंजियम कहा जाता है। इन्हीं के अंदर पोलन मदर सेल होती है जिससे पोलन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर एंड ड्रा दिस आल्सो। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव part of flower. It consists 3 main part: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस डायग्राम में जो ऊपर की तरफ फनल से पार्ट दिख रहा है वो स्टिग्मा कहलाता है और यहाँ पे बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे नेक ऑफ कार्पेल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्टाइल। इट प्रोवाइड द पैसेज फॉर द पोलन ट्यूब। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यू कैन ड्रा इट इन योर फेयर कॉपी। स्टूडेंट ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, दिस इज ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल अकर्स इनसाइड द ओवरी, ये ओवरी के अंदर पाया जाता है एंड इज अटैच टू द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ये अटैच होता है बाय द मीन्स ऑफ स्टाल कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के द्वारा प्लेसेंटा से अटैच होता है। इट फ्यूजेस विद ओव्यूल एट द पॉइंट नोन एज हिलम, और ये हिलम पॉइंट से ओव्यूल से फ्यूज होता है। स्टूडेंट, इसी ओव्यूल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन हियर, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से अगर हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और एक बार जब मियोसिस सेल डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल में होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक केवल सर्वाइव करता है। तो स्टूडेंट, ये आर्की स्पोरियल सेल जो होती है वो 2 पार्ट उसमें होते हैं। आउटर प्राइमरी वाल जिससे न्यूक्लियस और वो इंटीग्यूमेंट वगैरह वगैरह बनते हैं ओव्यूल के, और दूसरा होता है मेगास्पोर मदर सेल। स्टूडेंट, ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तभी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। तो इस टाइप से हम मेगास्पोरोजेनेसिस को क्लियर कर सकते हैं। ना स्टूडेंट, द मेगास्पोर जो बना 4 मेगास्पोर बने थे जिनमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक जो बचता है इसी को फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है और फिर 2 बार सक्सेसिव माइटोटिक सेल डिवीजन फिर होता है, तब 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है जिसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होती हैं। ऊपर वाली 3 सेल जो होती हैं एंटीपोडल कहलाती हैं और नीचे वाली जो बीच में जो 2 दिख रही हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं और ये इसके नीचे ठीक अगर देखा जाए तो एक ओवम होता है जो बीच में है एग, और 2 सिनर्जिड्स होती हैं, सिनर्जिड सेल, और नीचे की तरफ फ्लीफॉर्म एपरेटस होता है। स्टूडेंट, जो सिनर्जिड सेल होती है वो पोलन ट्यूब जब आता है तो उसे गाइड करती है जिससे वो एग से जाके उसमें मेल गैमीट्स से और ओवम का फ्यूजन हो सके, और जो एक मेल गैमीट और आएगा वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा।
तो पोलर न्यूक्लियाई का रोल है कि वो मेल गैमीट से फ्यूज़ करने के बाद ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाए, यही बाद में एंडोस्पर्म बनेगा जिसमें फूड रिजर्व होगा। और एग जो है वो मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करके सिनगैमी करेगा और इसमें स्टूडेंट ये जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनेगा। स्टूडेंट एंटीपोडल सेल्स जो टॉप पे दिख रही हैं, इनका रोल होता है कि वो एग के लिए फूड की सप्लाई करें और एग का नरिशमेंट हो सके जिससे वो सरवाइव कर सके। ना स्टूडेंट, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो जाता है, इसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एक कह सकते हैं कि एक एग बन जाता है और एंथर के अंदर स्पोरेंजिया के द्वारा स्पोर्स बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर, जिन्हें बाद में हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये जब बन जाते हैं स्टूडेंट, इसके बाद एंथर बस्ट होता है और एंथर जब बस्ट होता है तो उसमें से बहुत पाउडरी तरह के कुछ सबस्टांस निकलता है, जिससे एक पार्टिकल को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर स्टूडेंट मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, जिसे मेल सैक सेल कहा जाता है। स्टूडेंट पॉलिनेशन फिर क्या होता है स्टूडेंट, जब एंथर बस्ट होता है तो ये पॉलन ग्रेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बना हुआ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम, ये इस गाइनोसियम की स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो वी कैन से दैट द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। पिस्टिल की स्टिग्मा पर एंथर से पॉलन का ट्रांसफ़र होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। स्टूडेंट पॉलिनेशन टू टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है, अगर एक प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं या वो प्लांट जो है डायोसियस कंडीशन का है जिस पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं, तब ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, जिसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। बट लेकिन अगर दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट में अगर पॉलन्स जो है, एक फील्ड में दो टाइप के प्लांट्स हैं लेकिन स्पीसीज सेम है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर पॉलन किसी एजेंट के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, तब ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा किसी पॉलिनेटिंग या पॉलिनेटर की के प्रेजेंस में ही होता है और पॉलिनेटर के द्वारा ही होता है। पॉलिनेटर पॉलन ग्रेन को कैरी करके और दूसरे स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे छोड़ देता है। तो स्टूडेंट ये क्रॉस पॉलिनेशन, स्टूडेंट पॉलिनेशन के बाद स्टूडेंट क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पर पॉलन जैसे ही स्टिग्मा पे गिरेगा और पॉलन स्टिग्मा पे आने के बाद उसमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी और पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगी। वहाँ पे एम्ब्रियो सैक में ये एम्बेडेड हो जाएगी और जो इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू दो मेल न्यूक्लियाई जो है, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो सैक तक आएंगे और फिर वो जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो फीमेल एग से फ्यूज़ करेंगे और सिनगैमी होगा और सिनगैमी स्टूडेंट होने के बाद जाइगोट बन जाएगा।
और जो दूसरा मेल न्यूक्लियस होगा वो पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में दो दिख रहे हैं इनके साथ फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा और इसको बोलते हैं स्टूडेंट ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। तो सिनगैमी और ट्रिप्लॉइड फ्यूजन स्टूडेंट इसके अंदर होता है और इसी ट्रिप्लॉइड फ्यूजन और सिनगैमी को कलेक्टिवली डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट डू यू नो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट क्या है? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन कलेक्टिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अगर किसी प्लांट के केस में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ हो रहा है तो उसी को कलेक्टिवली हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगैमी में स्टूडेंट एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है, उसे सिनगैमी कहा जाता है। और ट्रिपल फ्यूजन में स्टूडेंट एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होने के बाद ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। यही बाद में एंडोस्पर्म बन जाता है जिसके अंदर एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर होता है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नाउ स्टूडेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहला चेंज जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो को ही फ्यूचर प्लांट कहा जाता है। और फिर स्टूडेंट जो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट ने फ्यूज़ करने के बाद ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया उससे एंडोस्पर्म बन जाता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है फॉर द बेबी प्लांट या फ्यूचर प्लांट से। नेक्स्ट स्टूडेंट जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल की बाल सीड कोट बन जाती है जिसे हम टेस्टा कहते हैं। और स्टूडेंट ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरी की जो वाल है वो स्टूडेंट फ्रूट वाल बन जाती है। तो इस टाइप से एक कह सकते हैं। और जो इसमें पीटल्स सेपल्स फ्लावर के होते हैं या स्टाइल स्टिग्मा ये सभी ड्राई होके शेड ऑफ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद ही फ्रूट और सीड्स बनते हैं। ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। हाँ स्टूडेंट सीड का फ्रूट का जब फॉर्मेशन होता है तो सीड जो है फ्रूट से बाहर आकर के डिस्पर्स होता है और उस सीड को अगर सॉइल में हम मॉइस्ट सॉइल में अगर सोइंग करते हैं तो स्टूडेंट जर्मिनेट कर जाता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड इन फेवरेबल कंडीशन। जब सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ सीड कहा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। तो वेरी सिंपल कि सीड को पहले हम मॉइस्ट सॉइल में इसे सो करते हैं, फिर इसमें से जो एम्ब्रियो होता है वो इसका प्लूम्यूल से सूट सिस्टम बनता है और इसके जो रेडिकल पार्ट से रूट सिस्टम बनता है। और स्टूडेंट फिर माइटोसिस सेल डिवीजन से वो ग्रो करता है और इस तरीके से नया प्लांट बन जाता है। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। स्टूडेंट एंजियोस्पर्म आल्सो शो द alternation of generation and their life cycle is diplontic life cycle। स्टूडेंट क्योंकि इनमें स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है डोमिनेट करती है और गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है स्टूडेंट, इसलिए। और यहाँ पे स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है वो
काफ़ी लॉन्ग होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए फ्लावर जो प्लांट्स के ऊपर आता है, इसी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, जिसे मेल गैमीट कहते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ही एग बनता है, जिसे ओवा कहते हैं। ये जो मेल गैमीट है वो पॉलिनेशन प्रोसेस से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, इसकी स्टिग्मा पे आके गिर जाता है, तभी पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये फ्रूट के अंदर बंद हो जाता है। सीड का डिस्पर्सल के बाद सीडलिंग जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन से सीडलिंग बनता है, सीडलिंग के बाद न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है और इस टाइप से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और इसी लाइफ साइकिल लगातार रिपीट होती रहती है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंड in this way I explain the sexual reproduction in angiosperm and life cycle of angiosperm, and this topic completed. Now in coming